ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ GVK ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 61% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 34% ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਲਾ ਲਈ। ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ 3 ਆਪਣੇ ਹੋਗੇ, 2 ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਮੂਡ ਦੱਸਿਓ, ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ कि पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और उनके मंत्री ऐसे मौके पर भी सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आग में घी डालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सहयोग की उनकी कोई भावना नहीं है। दूसरे देश में अगर कहीं कुछ होता है तो हमारी सरकार तुरंत पैकेज का ऐलान कर देती है। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी जो एक राज्य के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे अफसोस है कि अजनाला और दूसरे क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, पंजाब पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है, कई लोगों की जान चली गई और अभी वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तकनीक के जमाने में जब एक एक चीज की खबर मीडिया में दिखाई जा रही है, टीवी चैनल्स पे प्रसारित की जा रही है, पंजाब सरकार ने रिक्वेस्ट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया, हमारे मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, कार्यकर्ता देखिए अपने कंधों पे बोरी लाद के कार्यकर्ता ये बांध बनाने के काम में जुटे हुए हैं, किनारे किनारे मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं और वो आगे राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसे वक्त में मैंने 1 साल पहले, वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का, पंजाब का और दूसरे मदों का 8,000 करोड़ रुपए बकाया है, आज तक पैसा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने और हिसाब बना के बताया कि भाई इतना पैसा हमारा बाकी है, हमको दे दो। अपने हक का पैसा पंजाब को नहीं मिल रहा है, कहीं आपको केंद्र सरकार का सहयोग नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक फिजूल की फालतू बातें हैं। हमारी सरकार, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, माइनिंग का मामला हो, कहीं किसी को नहीं बख्शती, कार्रवाई करने का काम करती है।
कटारू चक जी, हमारे मंत्री जी जो लालचंद कटारू चक जी, माननीय मंत्री जी और इनके साथ सारे कार्यकर्ता इस पूरे क्षेत्र में जिस दिन से बाढ़ आई हुई है, खुद से मेहनत करके यहाँ के डीसी साहब, एसएसपी और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सब लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और इसमें लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले हम कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। और पंजाब तो वो धरती है जहाँ के लोगों ने दुनिया में कहीं कुछ हुआ, भूकंप आया, तूफान आया, अकाल आया, पंजाब के लोगों ने तो लंगर चलाया, लोगों की सेवा की, पूरी दुनिया की सेवा करने वाले लोगों के रूप में पंजाब के लोगों की पहचान है। आज पंजाब तकलीफ में है तो सबको आके यहाँ पे मदद करनी चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपील की है, हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं। कई परिवारों की जान भी गई है, उनकी भी मदद हो रही है और इस वक्त जो जरूरत है उसमें फॉगिंग मशीन की जरूरत है। अगर कुछ लोग सहयोग कर सकते हैं, गाँव में दे सकते हैं तो उसका सहयोग कर सकते हैं। त्रिपाल की जरूरत है, चारे की जरूरत है। सरकार अपने स्तर से कर रही है, लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर से कर रही है, पार्टी हमारी एक एक कार्यकर्ता अपने तरफ से मेहनत कर रहा है। अगर कष्ट है तो इस बात का कि ऐसे मौके पे भी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूरी बातें कर रही है। सीएम साहब कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ हमारा बकाया तो दे दो, अगर रिफंड नहीं चाहिए तो 60,000 देखिए, करोड़ जीएसटी का, रूरल डेवलपमेंट फंड का और कई मदों का पैसा मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो ये 60,000 करोड़ रुपए बनता है। अकेले रूरल डेवलपमेंट फंड और कुछ अन्य मदों का मैंने बताया था कि 8,000 करोड़। और एक साल पहले पार्लियामेंट का दिया गया मेरा बयान है, मैंने अपील की थी सरकार से कि भाई ये पंजाब के हक का पैसा है, आप कोई दया नहीं कर रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं, आप हमारा पैसा दे दीजिए। लेकिन वो भी पंजाब के लोगों को नहीं दे रही सरकार। दौरा कर रही हैं, सर्वे कर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, पर अभी तक तो है तो कोई सामने नहीं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं वो कि हम रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो अभी किसी दूसरे देश में ब्राजील के फुटबॉलर का एक बार शायद उनकी हड्डी उड्डी टूट गई थी तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया। तो ब्राजील के फुटबॉलर की चिंता है, अफगानिस्तान को राहत सामग्री उन्होंने भेज दिया और यहाँ हिंदुस्तान के लिए उनके पास कोई राहत का पैकेज नहीं है। तो ये तो अफसोस की बात है ना, ये सोचना भी पड़ेगा हम लोगों को कि किस तरीके से ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है पंजाब के साथ। भगवंत मान की सेहत अभी सेहत स्थिर हो रही है, हमारी सुबह बातचीत भी हुई थी परिवार के साथ और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पार्टी में सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब लोग मेहनत से कर रहे हैं, जुटे हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। हमारे माननीय मंत्री जी आप देख सकते हैं पहले दिन से लगातार लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं कि पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और उनके मंत्री ऐसे मौके पर भी सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आग में घी डालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सहयोग की उनकी कोई भावना नहीं है। दूसरे देश में अगर कहीं कुछ होता है तो हमारी सरकार तुरंत पैकेज का ऐलान कर देती है। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी जो एक राज्य के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे अफसोस है कि अजनाला और दूसरे क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, पंजाब पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है, कई लोगों की जान चली गई और अभी वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तकनीक के जमाने में जब एक एक चीज की खबर मीडिया में दिखाई जा रही है, टीवी चैनल्स पे प्रसारित की जा रही है, पंजाब सरकार ने रिक्वेस्ट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया, हमारे मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, कार्यकर्ता देखिए अपने कंधों पे बोरी लाद के कार्यकर्ता ये बांध बनाने के काम में जुटे हुए हैं, किनारे किनारे मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं और वो आगे राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसे वक्त में मैंने 1 साल पहले, वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का और दूसरे मदों का 8,000 करोड़ रुपए बकाया है, आज तक पैसा नहीं दिया।
मुख्यमंत्री जी ने और हिसाब बना के बताया कि भाई इतना पैसा हमारा बाकी है, हमको दे दो। अपने हक का पैसा पंजाब को नहीं मिल रहा है। कहीं आपको केंद्र सरकार का सहयोग नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक फिजूल की फालतू बातें हैं। हमारी सरकार, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, माइनिंग का मामला हो, कहीं किसी को नहीं बख्शती, कार्रवाई करने का काम करती है। कटारू चक जी, हमारे मंत्री जी, जो लालचंद कटारू चक जी, माननीय मंत्री जी और इनके साथ सारे कार्यकर्ता इस पूरे क्षेत्र में जिस दिन से बाढ़ आई हुई है, खुद से मेहनत करके यहाँ के डीसी साहब, एसएसपी और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, वो सब लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और इसमें लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले हम कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। और पंजाब तो वो धरती है जहाँ के लोगों ने, दुनिया में कहीं कुछ हुआ, भूकंप आया, तूफान आया, अकाल आया, पंजाब के लोगों ने तो लंगर चलाया, लोगों की सेवा की। पूरी दुनिया की सेवा करने वाले लोगों के रूप में पंजाब के लोगों की पहचान है। आज पंजाब तकलीफ में है तो सबको आके यहाँ पे मदद करनी चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपील की है। हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं। कई परिवारों की जान भी गई है, उनकी भी मदद हो रही है। और इस वक्त जो जरूरत है उसमें फॉगिंग मशीन की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग सहयोग कर सकते हैं, गाँव में दे सकते हैं तो उसका सहयोग कर सकते हैं। त्रिपाल की ज़रूरत है, चारे की ज़रूरत है। सरकार अपने स्तर से कर रही है, लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर से कर रही है, पार्टी हमारी एक एक कार्यकर्ता अपने तरफ से मेहनत कर रहा है। अगर कष्ट है तो इस बात का कि ऐसे मौके पे भी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूरी बातें कर रही है। सीएम साहब कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ हमारा बकाया तो दे दो, अगर रिफंड नहीं चाहिए तो 60,000 देखिए, जीएसटी का, रूरल डेवलपमेंट फंड का और कई मदों का पैसा मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो ये 60,000 करोड़ रुपए बनता है। अकेले रूरल डेवलपमेंट फंड और कुछ अन्य मदों का मैंने बताया था कि 8,000 करोड़। और एक साल पहले पार्लियामेंट का दिया गया मेरा बयान है, मैंने अपील की थी सरकार से कि भाई ये पंजाब के हक का पैसा है, आप कोई दया नहीं कर रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं, आप हमारा पैसा दे दीजिए। लेकिन वो भी पंजाब के लोगों को नहीं दे रही कई सरकार। कमेटियों ने दौरा कर रही हैं, सर्वे कर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, पर अभी तक तो है तो कोई सामने नहीं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं वो कि हम रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो अभी किसी दूसरे देश में, ब्राजील के फुटबॉलर का एक बार शायद उनकी हड्डी उड्डी टूट गई थी तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया। तो ब्राजील के फुटबॉलर की चिंता है, अफगानिस्तान को राहत सामग्री उन्होंने भेज दिया और यहाँ हिंदुस्तान के लिए उनके पास कोई राहत का पैकेज नहीं है। तो ये तो अफसोस की बात है ना। ये सोचना भी पड़ेगा हम लोगों को कि किस तरीके से ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है पंजाब के साथ। भगवंत मान की सेहत अभी सेहत स्थिर हो रही है। हमारी सुबह बातचीत भी हुई थी परिवार के साथ और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पार्टी में सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब लोग मेहनत से कर रहे हैं, जुटे हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। हमारे माननीय मंत्री जी आप देख सकते हैं पहले दिन से लगातार लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं।